Students, last week you studied about Jahangir, who was the son of Akbar, and then you studied about Shah Jahan. Now today we will study about Aurangzeb, who was the son of Shah Jahan. Actually, students, there are two main rulers in Mughal dynasty who ruled for long period of time, approx 50 years. And these were Akbar and Aurangzeb. These two rulers were ruled about, I think it's about 50 years of time. Okay. And these were the greatest ruler in Mughal dynasty. Actually, the credit to expand the Mughal dynasty, the Mughal empire, goes to these two rulers. First, Akbar expanded the Mughal empire, and then later, Aurangzeb again expanded the Mughal empire. और ये औरंगजेब का ही टाइम था जब मुगल एम्पायर बहुत ज्यादा वास्ट हो गया, बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया था. तो अगर बात की जाए मुगल डायनेस्टी की, तो फर्स्ट रूलर कौन था? बाबर. And after Babar, Humayun's son Humayun became the emperor. Then Akbar. Then after Jahangir, Shah Jahan, and then Aurangzeb became the emperor. Students, mute yourself. Okay. Babar founded Mughal dynasty. Then Humayun became the next emperor, then Akbar, then Jahangir, Shah Jahan, and Aurangzeb. Later, many Mughal emperors ruled India, but these were the two main rulers who expand Mughal dynasty. Okay. So today we will study about Aurangzeb. Aurangzeb was the son of Shah Jahan. Actually, Aurangzeb was the third son of Shah Jahan, but he was very ambitious. And he was a great warrior. He was a skilled warrior. So he defeated all his brothers and got the throne of Mughal Empire. Other four sons were Aurangzeb, Shah Jahan. Other three sons are Dara first and Dara, who was a very learned person. He was a very learned person, but Aurangzeb defeated him and killed him. Next, Murad. Third son is Aurangzeb. And fourth was Shuja. Okay, these were the four sons of Shah Jahan. But finally, Akbar became the ruler of Mughal Empire. He fought with all his brothers and defeated
them and then got the throne of Mughal Empire. After getting the throne in 1658 to 1707. Okay, this is the time period of Aurangzeb. Okay students, यहाँ पे एक important thing ये है कि अगर आप इसको याद करना चाहे तो अकबर और औरंगजेब के टाइम देखने को मिलती है like 1556 to 1605. ओके, इसलिए आप लर्न कर सकते हो। यहाँ पे देखिए 6 के प्लेस में 5 हो गया, यहाँ पे 2 डिक्रीज कर दिया 1556। सेम थिंग हैपेंड इधर हियर 7 के प्लेस पे 6 1 नंबर रिड्यूस एंड हियर 7 के प्लेस पे 2 नंबर का डिक्रीज करा 5 आ गया। तो मतलब ये है कि अगर अकबर के टाइम पीरियड में जो लास्ट डिजिट है एक ईयर की उसमें 2 ऐड कर दीजिए एंड हियर 1 ऐड कर दीजिए सेकंड और फोर्थ प्लेस पे इवनली इन द सेम वे यहाँ पे आप 1 ऐड कर दीजिए और यहाँ पे आप 2 ऐड कर दीजिए तो औरंगजेब का टाइम पीरियड आ जाएगा। इट्स अ ट्रिक टू लर्न द टाइम पीरियड ऑफ औरंगजेब एंड अकबर। ओके, इट्स इजी। अगर आप अकबर का टाइम पीरियड आपको याद है 1556 टू 1605 तो आप देखेंगे कि इस डिजिट में 2 नंबर का डिफरेंस है। ओके, एंड इधर 1 का डिफरेंस। So it's easy to learn the time period of Aurangzeb if you learn the time period of Akbar. So the time period of Aurangzeb is 1658 to 1707. And after getting the throne, he took the title of Alamgir. Alamgir. Alamgir means Alamgir is conqueror of the world. Actually, he was very ambitious person. He wanted to expand his empire. Actually, in his whole life, he fought many battles to expand his empire. Aurangzeb Empire extended from Kashmir in the north to Jindi in the south. It's a place at that time, south में and from Hindu Kush in this region in your map, okay, in western region. Hindu Kush is the to Chittagong in the east. How vast his empire is, okay. Actually, the whole credit goes to Akbar and Aurangzeb for expansion of Mughal Empire. But he faced many revolts also. Actually, औरंगजेब जो था ना उसने अकबर की पॉलिसीज को अडॉप्ट नहीं किया था, लाइक फ्रेंडली रिलेशन विद राजपूत्स एंड रिड्यूसिंग और अबॉलिशिंग टैक्सेस ऑन हिंदूज। तो उसने ये सारी चीजों को फॉलो नहीं किया था। Instead of following these tricks, these policies of Akbar, he imposed taxes on persons, on Hindus and his subjects. उसने अपने सब्जेक्ट्स, अपनी जो उनके एम्पायर के जो पीपल थे, कॉमन पीपल थे या जो भी अदर हिंदूज थे, उनके पर उसने बहुत सारे टैक्सेस इम्पोज किए थे। इसके अलावा वो फ्रेंडली भी नहीं था। दैट्स व्हाई ही फेस्ड many rebels or revolts.
revolt is Jats. The first revolt was from Jats of Agra, Delhi. He suppressed that revolt, but kindly they revolted again and again. So Agra and Delhi region में जो people थे वो जाट्स कहलाते थे. उन्होंने जो रिवोल्ट क्यों किया? बिकॉज ऑफ हाई लैंड टैक्सेस कलेक्टेड बाय औरंगजेब. तो इन्होंने क्या किया था? इन्होंने हाई लैंड टैक्स इम्पोज किए थे लोगों के ऊपर. अब जो जाट्स थे इन्होंने क्या किया? इसके अगेंस्ट में रिवोल्ट कर दिया. He suppressed these revolt. He defeated the Jats, but he was unable to crush them completely. वो टाइमली रिवोल्ट करते ही रहे. Then Bundelas. First revolts. Second, Bundelas. Here, Bundelas, under the leadership of Bundelas, इनका लीडर कौन था? Who was the leader of Bundelas? Underline this: Champat Rai and Chhatrasal. Leaders: Champat Rai and Chhatrasal. They were the leader of Bundelas who rebelled against Aurangzeb. Here, the same reason was behind the revolt: high land tax and policies of Aurangzeb. Actually, Aurangzeb was very rude ruler. He imposed high taxes on his subjects and also he treated them rudely. That's why people started revolting against him. This revolt was also suppressed by Aurangzeb. Next revolt was with Satnamis. Satnamis एक religious body है बेटा, इसके साथ जो है कॉन्फ्लिक्ट हुआ था औरंगजेब का. यहाँ पे ये जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था ये कब हुआ था? 1672. In 1672. Okay. This was also pressed by Aurangzeb because he was a skilled warrior. He was a good कह सकते हैं leader. He was a good general. तो उसने इन रिवोल्ट्स को सप्रेस तो किया. यहाँ पे जाट्स का रिवोल्ट जो है वो फुली सप्रेस नहीं कर पाया. यहाँ पे जाट्स अगेन एंड अगेन रिबेल करते रहे. बुंदेलास का जो रिवोल्ट था, सतनामीज जो रिलीजियस सेक्ट था, इनके रिवोल्ट्स जो है ये फिर औरंगजेब ने फाइनली सप्रेस किए. देन इन नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर, एक्चुअली मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था दैट अकबर many battles, many wars, many revolts in his whole life. तो यहाँ पे एक और था नॉर्थ वेस्ट ईस्ट फ्रंटियर. यहाँ पे जो अमोम रूलर्स थे, जो रूलर्स उस टाइम पे रूल कर रहे थे वो अमोम कहलाते हैं. अमोम इन आसाम. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर इट्स द रीजन ऑफ आसाम. इंडिया का नॉर्थ ईस्ट पार्ट है उधर. वहाँ पे कौन से रूलर्स थे? अमोम रूलर्स थे. They challenged Aurangzeb. Here they were defeated by Aurangzeb and forced to pay a large war indemnity and annual tribute. यहाँ पे Amon rulers they were defeated by Aurangzeb and paid a huge amount as a compensation of battle, and they had to pay some tribute annually. उनको एक अमाउंट बता दिया गया औरंगजेब ने कि उन्हें ये चीज एनुअली पे करनी है. इसके अलावा उन्हें जो वॉर में जो एक्सपेंसेस होते हैं उसका कंपनसेशन भी देना पड़ता है.
They were defeated by Aurangzeb. Next, in Eastern India, शाइस्ता खां जो मुगल का ही गवर्नर था बंगाल में, उसकी पावर बढ़ने लगी थी। एक्सेसिव पावर जब बढ़ने लगती है लोगों के पास, तो वो क्या करता है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट फ्री करने लगता है। तो यहाँ पे उनकी स्ट्रॉन्ग नेवी हो गई थी, और इसके अलावा उन्होंने जो चित्तगांव का पोर्ट है उसको कैप्चर कर लिया था। चित्तगांव ये एक बंगाल का एरिया है, जिसको मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, अब बंगाल का है तो सी साइड एरिया, तो इसके पोर्ट को कैप्चर कर लिया था। तो इनकी पावर बढ़ने लगी थी। यहाँ पे औरंगजेब को इसे ट्रस्ट करना बहुत जरूरी था। तो this opened the seas for free trade and gave a boost to maritime trade and commercial in Bengal. Northwest frontier province was a constant source of trouble because of frequent uprising of Afghan tribesmen. Northwestern frontier means जो ये अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला एरिया है, इधर की तरफ से जो अफगान्स हैं उनसे औरंगजेब को हर बार थ्रेटन फील होता था। यहाँ पे इनका जो है इफेक्ट बहुत था। So Aurangzeb went to Peshawar in 1674, and by the use of force and diplomacy, he defeated Afghan and restored peace in region. So in northwestern frontier, northeast frontier में Afghan rulers थे, and northwest frontier में Afghans. Northwest frontier. Here Aurangzeb also defeated Afghan. They were also defeated by Aurangzeb, and in this way Aurangzeb expanded his empire. अभी यहाँ इन्होंने defeat किया, obviously यहाँ पे उसका hold हो गया औरंगजेब का। In the same way in north west frontier में अफगान्स को defeat किया, तो यहाँ पे औरंगजेब का hold हो गया। इस तरह से उसका empire extend होता जा रहा था। Last to come in military conflict with Sikh. इनका जो last military conflict था वो किसके साथ हुआ था? वो सिख के साथ हुआ था। यहाँ पे गुरु अर्जुन देव, द 9th Sikh Guru, Guru Tegh Bahadur, protested against this. As a result, Aurangzeb had him arrested and brought to Delhi. तो जो गुरु तेग बहादुर, नॉट अर्जुन सिंह, गुरु तेग बहादुर के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उस टाइम पे, और औरंगजेब ने जो है गुरु तेग बहादुर को अरेस्ट कर लिया। देन उन्हें फोर्स किया मुस्लिम रिलीजन अडॉप्ट करने के लिए, एंड व्हेन ही रिफ्यूज्ड टू अडॉप्ट मुस्लिम रिलीजन, औरंगजेब किल्ड Guru Tegh Bahadur. After the death of Guru Tegh Bahadur, Guru Gobind Singh became the next Sikh Guru, and he established a new race named Khalsa. खालसा एक्चुअली इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिख को फिर मिलिट्री ट्रेनिंग देना स्टार्ट किया गुरु गोविंद सिंह ने, सो दैट दे कैन फेस औरंगजेब. ओके, and then they were known as Singh. Singh means the lion. That's why जो ये लोगों के नाम के पीछे जो सिंह है, इसका मतलब यहाँ पे ये है कि they are just like lion, they are just brave, just like lion. Guru Gobind Singh's death, his successor Banda Bahadur carried on the struggle against the Mughals. तो पहले तो ये जो गुरु तेग बहादुर थे, इनको औरंगजेब ने किल किया। उसके बाद गुरु गोविंद सिंह आए नेक्स्ट गुरु बनके। इनकी डेथ के बाद फिर बंदा बहादुर जो थे, मतलब वहां पे उसके बाद कोई सिख गुरु रह ही नहीं गए थे। गुरु गोविंद सिंह 10th गुरु was the last Sikh guru, and then after Guru Granth Sahib is accepted as इटर्नल गुरु. ओके, तो गुरु गोविंद सिंह की डेथ के बाद एक उनके जो डिसिपल थे, उनके डिसाइपल बंदा बहादुर थे, उन्होंने फिर उनके इस मिलिट्री कैंपेन को लीड किया, और तब तक उन्होंने लीड किया जब तक वो उसमें लास्ट मूवमेंट तक, अपनी लास्ट मूवमेंट ऑफ लाइफ तक उन्होंने मुस्लिम्स के अगेंस्ट, मुगल्स के अगेंस्ट स्ट्रगल किया. Later on, Aurangzeb came into conflict with Rajput rulers of Mewar and Marwar. तो फर्स्ट तो क्या हुआ, पहला क्या था, सबसे पहले रिबेल जाट्स के साथ था। जो जाट रिबेल्स थे उनको सप्रेस किया, देन बुंदेलास को सप्रेस किया, देन आफ्टर जो अहोम रूलर्स थे नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर में,
इनको जो है सप्रेस किया औरंगजेब ने। इन नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अफगान्स को सप्रेस किया। तो इस तरह से उसका जो फुल टाइम था वो इन बैटल्स इन वॉर्स में ही जा रहा था, और इसका आउटकम ये हो रहा था कि उसका एम्पायर जो है नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में एक्सपेंड करता जा रहा था। लेटर ही सप्रेस्ड ही हैड कॉन्फ्लिक्ट विद राजपूत्स ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। यहाँ पे जो मेवाड़ और मारवाड़ में था, यहाँ और जसवंत सिंह जो रूलर थे मारवाड़ के, उनकी डेथ हो गई थी बिना मेल हेयर के, मतलब उनका कोई सन नहीं था उस टाइम पे। तो उनका जो एक्चुअली उनका सन जो है उनकी डेथ के कुछ समय मतलब बाद हुआ, जैसे कहते नहीं कि उनकी वाइफ प्रेग्नेंट थी बट उनकी डेथ हो गई। तो जो सन हुआ उसको औरंगजेब ने रिजेक्ट कर दिया, कहा कि हम इनको रूलर नहीं मानेंगे, अब जो मारवाड़ है वो हमारे अंडर में होना चाहिए। बट यहाँ पे जो अजीत सिंह थे, जो जसवंत सिंह के सन थे, उसके सक्सेसर थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने कंपेनियंस के साथ। यहाँ पे राणा ऑफ मारवाड़ मेवाड़ डिसाइडेड टू सपोर्ट। अब यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट किसके साथ हुआ था? मारवाड़ और मेवाड़ के साथ। तो मेन इशू तो मारवाड़ के साथ था, मेवाड़ ने उसे सपोर्ट किया, इस वजह से औरंगजेब फेस्ड कॉन्फ्लिक्ट विद मारवाड़ एंड मेवाड़ आल्सो। तो यहाँ पे जब राणा इन लोगों के साथ औरंगजेब का कॉन्फ्लिक्ट हुआ, इनके साथ वॉर हुई, बैटल हुई, देन फाइनली मुगल्स ने इनको डिफीट तो कर दिया, बट इन्हें थोड़ा सा फ्रीडम दी गई कि वे अपने एरिया में रूल करेंगे, बट इनको जो है एनुअली थोड़ा सा जो पे करना होता है टैक्सेस वगैरह वो लगाए गए। बाकी ये फ्रीडम दे दी गई थी मेवाड़ के रूलर को कि आप अपनी जो टेरिटरी है उसमें प्रॉपर आप रूल कर सकते हैं। तो इस तरह से नॉर्दर्न रीजन में औरंगजेब ने अपने एम्पायर को एक्सटेंड किया। देन ही मूव्ड टुवर्ड्स सदर्न एरिया, डेक्कन एरिया। डेक्कन टर्न बार ये रीजन ऐसे थे जो बार बार अपने आप को फ्री कर रहे थे। तो अब औरंगजेब के टाइम पे क्या होता है, डेक्कन पॉलिसी जो है उस टाइम पे वहां पे मराठास जो थे वो बहुत पावरफुल हो गए थे। मराठास में एक बहुत ही मोस्ट फेमस मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर शिवाजी। इस टाइम पे ये वो टाइम पीरियड था जब मराठास में जो मेन रूलर थे वो छत्रपति शिवाजी थे, एंड ही वॉज अ वेरी ब्रेव पर्सन। He annexed Aurangzeb to turn his attention towards the Deccan because of the powerful Maratha ruler Shivaji. So he annexed Bijapur in 1685 and Golconda in 1687. The third great power of importance in Deccan was Maratha. अभी मैंने बोला कि अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा ये नाम याद रखिए, जब भी डेक्कन रीजन की बात हो तो मेनली टेरिटरी का इन रीजन का नाम आता है। तो यहाँ पे औरंगजेब ने 1685 में बीजापुर एनेक्स किया। बीजापुर in 1685 and Golconda in 1687, and then he faced Maratha rulers that became the great threat for Aurangzeb. Mughals could not succeed against the Maratha, but the continuous wars depleted the royal treasury and led to the loss of a number of soldiers. तो इनके साथ मराठा कॉन्फ्लिक्ट काफी समय तक चलता रहा। ये पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं हो पाए मराठास को सप्रेस करने में, बट ये जो कंटिन्यूअस वॉर का फेस चल रहा था, फर्स्ट ही सप्रेस द रिबेलियंस, then he get victory over northeast frontier, northwest frontier and in ईस्टर्न रीजन। इन कह सकते हैं कि ये जितने सिख के साथ जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जब ये सारे कॉन्फ्लिक्ट्स इन्होंने फेस किए तो अब यहाँ पे जो इनकी आर्मी थी वो वीक होती जा रही थी और इनका ट्रेजरी जो है वो एम्प्टी होता जा रहा था, इनका ट्रेजर। इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ कि अब
औरंगजेब क्या था, पहले तो उसने नॉर्दर्न एरिया में एक्सपेंशन किया, देन ही मूव टुवर्ड्स डेक्कन एरिया, सदर्न एरिया। तो जब सदर्न एरिया में उसने मूव किया और वहां पे वो बैटल में एंगेज हो गया, तो नॉर्दर्न एरिया में तो उसका होल्ड उतना रहा नहीं। एट दैट टाइम नॉर्दर्न एरिया में उसका जो होल्ड था, उसकी जो ग्रिप थी एडमिनिस्ट्रेशन में, वो वीक होना स्टार्ट हो गई। सो दिस इज ऑल अबाउट औरंगजेब। एंड उसकी डेथ के बाद जो भी रूलर्स आए मुगल, बहुत सारे रूलर्स आए, बिकॉज मोर देन 200 ईयर्स इन्होंने रूल किया है, बट वो रूलर्स इतने एम्बिशियस नहीं थे, वो रूलर्स बहुत ज्यादा ब्रेव नहीं थे, उतने एफिशिएंट, उतने स्किल्ड नहीं थे जैसा ये औरंगजेब थे, अकबर थे, या शाहजहां, हुमायूं वगैरह भी थे। तो इसके बाद मुगल डायनेस्टी में जो भी रूलर्स आए वो लेस एफिशिएंट थे, जिसकी वजह से मुगल डायनेस्टी एक्सपेंशन के बाद अब श्रिंक करना शुरू कर दी थी। लोग अपने जो अदर रूलर्स थे, जो एफिशिएंट होते थे, वो अपने आप को फ्री कराना स्टार्ट कर दिए थे। तो मेन जो इसी यही वजह है कि आज के चैप्टर में मेन जो रूलर्स हैं, जहां तक मुगल एम्पायर का एक्सटेंशन हुआ है, एक्सपेंड किया है, वहीं तक आपको इसमें ये बताया गया है। इसके बाद के जो रूलर्स थे, they were less efficient in comparison to Aurangzeb and other Mughal rulers. Now we will study about Shivaji. Okay. Shivaji was a great king in Marathas, in Maratha state. He extended, underline this in your book, extended from Kalyan to Goa and included parts of Karnataka and Mysore. Okay. तो स्टार्टिंग में हुआ क्या था, जो मैंने क्या बोला कि ये जो डेक्कन स्टेट्स थे, ये अपने आप को टाइम टू टाइम फ्री कराते रहते थे, या मुगल्स का होल्ड जो है वो वीक हो जाता था। तो जिस टाइम पे मुगल का होल्ड वीक हुआ था डेक्कन स्टेट्स पे, एट दैट टाइम शिवाजी जो मराठा थे, उन्होंने जो लैंड टैक्स वगैरह लगाए थे, वो इस टाइप से लगाए थे कि इनकी वेल्थ बढ़ने लगी थी, इनकी वेल्थ बढ़ने लगी तो अच्छे से आर्मी होल्ड कर सकते थे, और जो औरंगजेब है उसको आराम से वो जो है वो कह सकते थे कि चैलेंज कर सकते थे। ओके, सो एज ऑफ मैग्निफिकेंस, the 17th century has been described in medieval India history as age of magnificence. It was during this period that Mughal Empire reached the zenith of its glory. मतलब पीक पे पहुंच गई थी। अभी मैंने आपको बताया ना कि जितना भी एक्सपेंशन हुआ है मुगल एम्पायर का, वो औरंगजेब के टाइम तक हुआ है। तो ये जो ये 17th सेंचुरी का टाइम पीरियड था, इसमें मुगल एम्पायर अपने जेनिथ पे, अपने पीक पे पहुंच चुका था, टॉप पे पहुंच चुका था। इस टाइम पे इसको एज ऑफ मैग्निफिकेंस भी कहते हैं, क्योंकि एक बड़ा सा एम्पायर था जो कि खाली मुगल्स रूल कर रहे थे। तो ये जो था, ये टाइम पीरियड था पीस से रिलेटेड था। हाँ, हुई है थोड़ी बैटल्स, कुछ ये सब हुई है, बट जो मुगल रीजन था जहाँ पे मुगल्स रूल कर रहे थे, इन कंपैरिजन टू अदर टाइम पीरियड्स, ये टाइम पीरियड थोड़ा पीसफुल था, जहाँ पे प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन हुआ, जहाँ पे नया नया कंस्ट्रक्शन, नई नई बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट की गई, लाइक रेड फोर्ट, जामा मस्जिद, ताजमहल, है ना, ये जितनी हमारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है मैक्सिमम, ये इस टाइम पीरियड में बिल्ड किए गए, कंस्ट्रक्ट किए गए। ट्रेड एंड कॉमर्स भी इस टाइम पे फॉरेन कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट हुआ। जहांगीर के टाइम पीरियड में सर थॉमस लो एंड जॉन हॉकिंस आए थे, जिन्होंने सूरत में फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। देन पोर्चुगीज ने वेस्ट बंगाल के हुगली एरिया में अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी, सेटअप की थी। तो इस तरह से ये वो टाइम पीरियड था जब फॉरेन ट्रेडर्स स्टार्टेड टू अराइव इंडिया। That's why this time period is known as age of magnificence. Then all added a heavy burden. अब यहाँ पे ये है कि कैसे इसका डिक्लाइन क्यों स्टार्ट हुआ, क्यों मुगल एम्पायर जो है वीकेंड होना स्टार्ट हुआ। तो यहाँ पे मेनली औरंगजेब के टाइम पे उसने जो इतने सारे रिबेल्स, इतनी सारी बैटल्स फेस की और अपना एम्पायर को एक्सपेंशन की जो पॉलिसी अडॉप्ट की, उसकी वजह से इस ट्रेजरी गॉड कह सकते हैं एम्प्टी, मतलब लगभग उसकी एम्प्टी, ऑलमोस्ट एम्प्टी ही हो गया था। उसका जो ट्रेजर था, जो वेल्थ थी, वो बहुत जल्दी जल्दी जो है ड्रेन होना स्टार्ट हो गई, क्योंकि बैटल्स के लिए आर्मी मेंटेन करनी होगी, आर्मी पे स्पेंड करा जाता है, एक ह्यूज अमाउंट, एक लार्ज अमाउंट स्पेंड किया जाता है। दैट्स व्हाई उसकी जो वेल्थ है वो कम होना शुरू हो गई थी। इसके अलावा ये जो टैक्सेस इम्पोज कर रहे थे पीजेंट्स पे,
फार्मर्स पे और कॉमन पीपल पे वो बहुत हाई टैक्सेस था, जो कि लोगों को अगेंस्ट कर रहा था एम्परर्स के। सो ये सारी चीजें जो थी दैट बिकेम द कॉजेज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। अब इसमें थोड़े से पॉइंट्स हैं, देख लीजिए। फर्स्ट पॉइंट हाईलाइट कर लीजिए, औरंगजेब गेव अप अकबर्स पॉलिसी ऑफ डिप्लोमेसी एंड रिलीजियस टॉलरेंस। अकबर सेक्युलर था ना, बट यहाँ पे औरंगजेब जो था वो स्ट्रिक्ट फॉलोअर ऑफ, स्टॉन्च फॉलोअर ऑफ मुस्लिम इस्लाम था। ठीक है, वो इस्लाम को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता था, यहाँ पे वो सेक्युलर नहीं था। ओके, अकबर जो था उसमें रिलीजियस टॉलरेंस था। इसके अलावा अकबर की जो पॉलिसी थी वो डिप्लोमेसी पॉलिसी थी, जो राजपूत पॉलिसी थी, टू मेक फ्रेंड, है ना, राजपूत को वो फ्रेंड बना रहा था। इसके अलावा उसकी मैट्रिमोनियल अलायंस थी, वो एक हाई पोस्ट, हाई रैंक दे रहा था राजपूत को और अदर्स हिंदूज को। हिंदूज के ऊपर से जो टैक्स थे, जिजिया टैक्स था और जो पिलग्रिम टैक्स था, उसको अबॉलिश कर दिया था। तो आगे के रूलर्स ने इन सब चीजों को फॉलो किया था, बट औरंगजेब ने इसको नहीं फॉलो किया बिकॉज ही वाज अ स्ट्रॉन्ग फॉलोअर ऑफ इस्लाम। सेकंड, औरंगजेब्स पॉलिसी ऑफ कंटिन्यूअस वॉर। कंटिन्यूअस वॉर ने एम्पायर को वीक कर दिया। वो एक जगह नॉर्थ छोड़ के डेक्कन की ओर गया वहां अपने एक्सपेंशन के लिए, तो पता चला नॉर्थ में उसका होल्ड वीक हो गया और लोगों ने किंगडम्स ने अपने आप को इंडिपेंडेंट कराना स्टार्ट कर दिया। मुगल नॉबिलिटी वर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब मुगल नॉबिलिटी में ईरानीज थे, तुरानीज थे एंड हिंदुस्तानीज थे। अब ये आपस में ही पावर के लिए लड़ रहे थे, तो जहां पे यूनिटी पे इफेक्ट आता है तो वहां पे डिमोलिश होना शुरू ही हो जाती है चीजें। मुगल आर्मी वाज ऑर्गेनाइज्ड मोर और लेस ऑन फ्यूडल लाइन्स। अब मुगल आर्मी फ्यूडल लाइन्स पे आ गई थी, मतलब वो कहते नहीं लैंड ओनरशिप की, लैंड के ओनर तो है बट वहां पे क्या कराते हैं, फ्यूडल सिस्टम में क्या होता है, लैंड जो होती है वो फ्यू लोगों के हाथ में होती है, लैंड के ओनर कुछ ही लोग होते हैं और वो बाकी पीजेंट से फार्मिंग उसमें कराते हैं और उनसे हाई कह सकते हैं हाई रेवेन्यू उनसे लेते हैं। ठीक है, तो ये फ्यूडल सिस्टम था, ये मुगल आर्मी में ये अब डेवलप होने लगा था। द नंबर ऑफ मनसबदार इंक्रीज रेपिडली एंड इट बिकेम डिफिकल्ट टू कंट्रोल। अब मनसब, अकबर के टाइम पे मनसब एक रैंक थी, आप लोगों ने पढ़ा था ना, जद एंड सवार। तो ये रैंक, अगर ये रैंक बढ़ने लगी लोगों की, तो लोगों के हाथ में ज्यादा पावर आ गई। अब पावर आ गई तो वो इंडिपेंडेंटली रूल करना चाहेंगे। दैट वीकेंड द मुगल एम्पायर। द इकोनॉमिक कंडीशन गेट वर्सेंड। कैसे वर्सेंड हो रही थी, लगातार कंटिन्यूअस वॉर में अगर है तो इकोनॉमिक कंडीशन वर्स होनी ही है। एंड पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी। अब पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी क्यों आ रही थी, क्योंकि जो फॉरेन अटैक्स हो रहे थे, नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, इन्होंने इन्वेजन स्टार्ट कर दिए। तो जिस एरिया में अगर वहां पे कोई पावरफुल रूलर नहीं है और ये इन्वेड करेंगे तो वो एरिया, वहां की प्रॉस्पेरिटी जो है उस पर इफेक्ट पड़ता है। सो दिस इज ऑल अबाउट सक्सेसर ऑफ अकबर। ओके, नाउ द सेशन इज गोइंग टू बी एंड. Do you have any doubt? Students, I will send the PDF of the work. Okay? जो भी मैं आपको अभी PDF शेयर करूंगी, इवनिंग तक शेयर कर दूंगी. Then do that work in your notebook. Okay? So I am going to unmute you all. Only 2 minutes are left. Do you have any doubt? No, ma'am. Okay. No, ma'am. No, ma'am. Okay, now answer. Name 2 British ambassadors. Name 2 British ambassadors who visited Jahangir's court. अभी मैंने बोला बेटा, कल भी पढ़ाया था, आज भी पढ़ाया था, जब फॉरेन विजिटर्स के नाम बोले थे, मैंने बोला था ना फॉरेन ट्रेडर्स आना शुरू हुए थे, सूरत फैक्ट्री की बात की थी, तो मैंने 2 नाम बोले थे. Yes. Yes. Sir Thomas Roe. Very good. And second? John Hawkins. Very John good. Hawkins. Yes, very good. Sir Thomas Roe and Sir John Hawkins. Name any 2 buildings constructed during the reign of Shah Jahan. Name any 2 buildings constructed during the reign of Shah Jahan. Who will answer?
Jama Masjid. Very Jama good. Masjid and Taj Mahal. Very Red good. Fort. Jama Masjid Mahal. and Taj Mahal. Okay. Thank you, class. I will share the PDF of this chapter by evening. So you will Thank you. complete your work with the help of that PDF. Okay. Thank you, class. Thank you, ma'am. Thank you, Thank you, ma'am. Beta, ma'am. bye. Bye. Have a nice day, ma'am. Bye, beta. Bye, students. Have a nice day, ma'am.